Okay, so we have started with financial services. I hope you remember. And there are five different types of financial services. It is segregated into five different types. The first one is fund-based financial service. Second is non-fund-based, also known as fee-based financial services. And third one is banking related financial services. Fourth one was securities related financial services. And fifth one was insurance related financial services. So, and we will do all five different types based on, it has again sub types of financial services. For example, we started with fund-based financial services, and we have sub different types of fund-based financial services. Now, when you talk about fund-based, what do you mean by fund-based? Fund means those services in which funds are directly involved. Example, leasing. Leasing means when somebody lends you, when somebody gives you equipment on rent, big equipments, okay, plant and machineries. Just like I gave you the example of construction business, the people who are involved in construction business, they have big plant and machineries, right? They do not buy because there are too many machineries that they want, not just one or two. Yes, so they don't go for purchasing. Okay, they never buy it. What they do is they purchase on rental basis. So there is a leasing company that owns the equipment means they have their own equipment. Okay, and they provide the use of the equipment to those companies who want to take it on rent. Okay, and those companies who want to take it on rent are known as lessee, and the company who owns the equipment and provide another company to the right to use is known as lessor. Okay, and when lessee takes it on rent, oh, of course, it is for agreed period of time, like 5 years, 10 years, or 3 years. That way, they have a mutual agreement. Everything is written on the paper document. That becomes a contractual agreement. Okay, and it is for an agreed period of time. And when lessee takes it on rent, he has to pay something in consideration. That means something in return of taking the equipment on rent. Lessor will not give him the equipment for the use for free of cost. Of course not. He will charge something, and that something is known as consideration. And what is that consideration known as? Rent. Rental for rent amount for periodic payments. That means you can ask him to pay maybe in installments, not just in one go. He may pay you in installments, like 6 monthly installments, like monthly installment. So that can be done. Okay, this was leasing. So let us come to the next point, which is known as hire purchase. What do you mean by hire purchase? Same as leasing. Same, ditto as leasing. There are two parties involved. Uh, uh, the one who is purchasing and the one who is taking on the rent. Okay, and the one who is purchasing owns the goods, and the one who is taking on the rent will pay. Ma'am, voice was slower. Okay, hire purchase. I am on the point of hire purchase. Hire purchase is also same as leasing. Now my voice is audible. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. Yes, ma'am. So hire purchase is same as leasing. There are two parties involved in hire purchase, like it was in leasing.
There are two parties involved, one who owns the goods, okay, and one who purchase the goods on rental basis, okay. And the one who purchase the goods on rental basis, takes it on rent, will pay consideration in return of that. What do you mean by consideration? He will pay something in against of purchasing the goods on rent, and that consideration will be known as higher charges. Same, there it was known as rent, here it is known as higher charges. Okay, who will pay the higher charges? The one who is going to take goods on rent. Okay, and there is a contract between these two parties. Everything is written in the contract, just like in the case of leasing. Okay, the one who owns the goods is I mean the owner of the goods. Okay, and the one who is purchasing on rent, he does not own the goods. He is just taking it on the rental basis. Now, if leasing and hire purchase, both items are same, both terms are same, so why are they differently given? Why are they separately given rather? Can anybody tell me? See, while explaining in brief, I gave you the hint. While explaining you, I hire purchase, I was explaining you right now. Yes. So while explaining in words, in very brief, I gave you the hint. So somebody must have noted. Please tell me if somebody has noted that difference. मैम हायर इसमें जो वो लोग सामान लेते उसका ज्यादा चार्जेस करते हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि उसमें ज्यादा इसमें कम, दोनों में भी हो सकते हैं, दोनों में भी ज्यादा हो सकते हैं, दोनों में भी कम हो सकते हैं। देखो लीजिंग का तो ज्यादा होता ही मैम है ना। सॉरी सॉरी, फिर से बोलो। परचेज का उधर भी तो परचेज कर रहे हो आप इक्विपमेंट को, पर रेंटल बेसिस पे। यहाँ पे भी परचेज कर रहे हो रेंटल बेसिस पे। चलो और कोई पॉइंट? वेरी गुड, आप एटलीस्ट रिस्पॉन्स दे रहे हो, वेरी नाइस। तो और कोई पॉइंट नजर में आ रही है जो बिल्कुल डिफरेंस है दोनों में? इंस्टॉलमेंट में पैसे जी, एग्रीमेंट रहता है। वहां पे भी एग्रीमेंट होता है, यहाँ पे भी नहीं। एग्रीमेंट नहीं नहीं, वहां पे भी एग्रीमेंट होता है, यहाँ पे भी म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट कहते हैं उसे, दोनों जगह होता है। अच्छा, और कोई किसी ने बोला मैम गुड्स का इंस्टॉलमेंट्स, एक मिनट, किसी ने बोला इंस्टॉलमेंट्स, वहां पे भी इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं, यहाँ पे भी इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं। तो ठीक है, चलो ये भी डिफरेंस नहीं है। वेरी गुड, आप एटलीस्ट मैम आंसर गुड्स कर का रहे हो। सॉरी, फिर से बोलो। मैं इसमें गुड्स से शायद से देते हैं। नहीं नहीं, एक सेकंड, दो जन साथ में बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। किसी ने क्या बोला? गुड्स के लिए। इसमें गुड्स से वेरी गुड, somebody said, who is that? Who is that? विशाल Vishant, very good, very good Vishant, this is first difference that I wanted. Okay, और कोई कुछ बोल रहा था, वो भी मुझे बता दो तो मैं आगे गुड्स के लिए एक्सप्लेन करती हूँ। और कोई कुछ बोल रहा था? ओनरशिप। वेरी गुड, ओनरशिप, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट ओनरशिप, ये दो चीजें बहुत बड़ी हैं। ये किसने जवाब दिया? शुभम यादव। शुभम, वेरी गुड। विशांत, शुभम, वेरी गुड। आपने शायद उसको रीड किया, शायद पढ़ रहे थे। देखो स्क्रीन ओपन रखी है आपने, जब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आप पढ़ के जवाब दे सकते थे। स्मार्ट वर्क करो। देखो मेरी बात सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। शायद पढ़ने से समझ नहीं आया होगा, अगर तो मैं बता देती हूँ। लीजिंग में कभी भी याद रखो, बड़े बड़े जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना, बिग इक्विपमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरीज, जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में यूज आते हैं, उससे रेंट पे दिया जाता है किसी कंपनी को। समझो मेरी कंपनी है जिसके पास बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स है, खुद के परचेज किए हुए। अब आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आप ना एलिवेटर्स बना के, लिफ्ट बनाना, एलिवेटर्स बनाना, ऐसा काम करते हो। तो आपको ना बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स चाहिए होती हैं। तो आप क्या करते हो? खरीदते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको तो मॉल्स में भी एलिवेटर्स बनाने हैं, एयरपोर्ट्स पे एलिवेटर्स बनाने हैं, और अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में लिफ्ट्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो आप थोड़ी एक मशीन से तो काम चलेगा नहीं ना, आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, एक मशीन से तो काम नहीं बनेगा। You have to purchase a minimum 5 to 7 machines.
अब इतना सारा पैसा आप ब्लॉक नहीं कर सकते हो 5 to 7 मशीन खरीदने में. So what you guys will do, take it on rental basis. You will purchase, but on the rental basis. And the ownership will never be yours. No. If you come into the contract, if you enter into the contract with lessee, he will never give you the ownership. Never. You pay the last installment, give back my equipment. Okay. The contractual is for, suppose the contract is for 5 years. Up to 5 years, you will pay the installments. Still, after paying the last installment, even after paying the last installment, the ownership will not become yours. No, never. In leasing, ownership till the last installment, the ownership belongs to the lessee. Okay. In hire purchase, it is, see, first difference is in leasing. In leasing, equipments are given on the rent. In hire purchase system, goods are given on the rent. Suppose I'm a manufacturer and you are a big wholesaler, very big company, you have a wholesaling company. Now you want goods, lot of goods, lot. वो कहते हैं ना, उसे हिंदी में क्या कहते हैं, हमने गुड्स के लाट खरीद लिए. लाट मतलब बहुत सारा, एक साथ हमने बहुत कमोडिटीज खरीद ली, एक साथ लाट में खरीद ली. क्या कहते हैं उसे, और कुछ, और कोई वर्ड आ रहा है आपको? बल्क में. बल्क में जब हम कहते हैं ना बल्क में, देखो कस्टमर कभी बल्क में नहीं खरीदता, लेकिन होलसेलर और रिटेलर्स तो बल्क में खरीदते हैं ना. यस तो जब, हाँ जी, तो जब हम बल्क में खरीदते हैं ना, तो इतना सारा अमाउंट सबके पास हो ऐसा जरूरी नहीं होता. होलसेलर के पास 20-30 लाख रुपए हो ऐसा जरूरी नहीं है ना. तो फिर आजकल सिस्टम क्या निकला है, हायर परचेज. यानी कि आपको मैन्युफैक्चरर बोलेगा हायर परचेज पे लेके जाओ, मतलब गुड्स सारे के सारे लेके जाओ, लेकिन जो पेमेंट है ना आप इंस्टॉलमेंट्स में करिए. हर महीने की इंस्टॉलमेंट, हर 2 महीने की इंस्टॉलमेंट, जैसा भी एग्रीमेंट होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में, हर 6 महीने की इंस्टॉलमेंट. समझ आ रहा है आपको? तो हायर परचेज में ना ये ध्यान देना है कि सबसे पहले तो गुड्स को डील किया जाता है. इसमें ना, इसमें इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, इसमें गुड्स होते हैं. ठीक है. गुड्स कैसे बेचे जाते हैं? बेचने तो हैं, आपको सेल करने हैं. जो प्राइस वसूल करनी है ना, वो इंस्टॉलमेंट्स में करनी है. ठीक है, ये भी समझ गए. फ्यूचर डेट पे आपको इंस्टॉलमेंट्स मिलती रहेंगी. ओके. अच्छा, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है ना, बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट जो डिफरेंस है लीजिंग और हायर परचेज में, देखो लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, मैं पहले बता देती हूँ, फिर आपको चाहिए तो रीड कर लेना. सो व्हेन द हायर परचेजर pays the last installment, the seller gives him the ownership of goods. अब ये गुड्स तेरे हो गए. लीजिंग में कभी भी इक्विपमेंट मेरे नहीं होंगे. हायर परचेज में गुड्स का मैंने लास्ट इंस्टॉलमेंट भर दिया ना, अब मैं वो गुड्स का कुछ भी करूँ वो मेरी मर्जी. लेकिन लीजिंग में मैं इक्विपमेंट का कुछ भी करूँ मेरी मर्जी नहीं. जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है वही यूज करना है, उतना ही यूज करना है, जितने टाइम पीरियड के लिए बोला उतना ही यूज करना है, और फिर वापस दे देना है, या फिर रिन्यू करवाना है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना पड़ेगा. यहाँ पे रिन्यू वाला कोई सिस्टम ही नहीं है. क्यों? क्योंकि इंस्टॉलमेंट अगर लास्ट पे कर ली तो वो गुड्स मेरे हो गए. अब वो ओनरशिप मेरी हो गई, टाइटल मेरा हो गया उस पे. बोलते हैं ना प्रॉपर्टी पे मेरा नाम है, टाइटल मेरा है. वो टाइटल की बात कर रही हूँ, वो ओनरशिप की बात कर रही हूँ. आई बात समझ में? जैसे पापा के बाद बेटे का होता है ना, बच्चों का होता है, बेटियों का होता है, वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ. तो टाइटल एंड ओनरशिप बिलोंग्स टू हायर परचेजर व्हेन एट द टाइम ऑफ लास्ट पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट. Is it clear? Yes, ma'am. Yes. ma'am. So now, मैम. okay. So now I'm giving you 2 minutes to read down whatever is given in the paragraph of hire purchase. मैम So do you have any doubt? Okay. Let's ma'am. come to, yes.
So let's come to next point, which is also fund based. What is fund based? I hope you understand that, when funds are directly involved. Now next point is bills discounting. ये तो मुझे आप बताने वाले, मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताओगे। आपने तो इसके ऊपर पूरा अकाउंटिंग चैप्टर किया है, सिर्फ मीनिंग नहीं पता आपको, तो आपने इसके ऊपर पूरा अकाउंटिंग की है। कोई बताएगा बिल्स डिस्काउंटिंग क्या होता है? अपने सिंपल वर्ड्स में अपने तरीके से एक्सप्लेन वन कर टाइप ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हाँ, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है ये। ओके, इसमें क्या होता है? बिल डिस्काउंटिंग में एक्चुअली क्या होता है? मैम जिसके पास बिल रहता है वो बैंक के पास आके बिल का अमाउंट पूरा ले लेता है। ओके, और फिर बैंक क्या ड्यू करती है? बिल के ड्यू के पहले भी पैसा मिल सकता है बैंक से। मैच्योरिटी पीरियड के बाद जाते हैं कलेक्ट करने। वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस आंसर, वेरी गुड। सो बिल डिस्काउंटिंग किसने दिया ये आंसर? वैसे किसने दिया? सत्यम ने। सत्यम, वेरी गुड, ओके, गुड जॉब। देखो, बिल डिस्काउंटिंग बाकी सबके लिए भी मैं क्लियर कर लेती हूँ। बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है? समझो अब मैं बैंक की क्लाइंट हूँ, ठीक है, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है। अब मेरे पास एक बिल है, मैंने अपने कस्टमर को गुड्स बेचे और उसका जो अमाउंट है ना वो मुझे 4 मंथ्स के बाद मिलना है मेरे कस्टमर से। मैं क्लाइंट हूँ बैंक का, मेरा अकाउंट है बैंक अकाउंट में, ओके, और मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है। अब मैंने अपने कस्टमर को गुड्स बेची क्रेडिट पे, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। अब जब मैंने अपने कस्टमर को गुड्स बेचे तो उसको मैंने कहा 4 महीने के बाद पैसा दे दो, चलेगा। क्रेडिट पीरियड उसको कहते हैं, 4 मंथ्स क्रेडिट पीरियड दे दिया। अब वो कस्टमर ने, वो ठीक है, वो तो चला गया गुड्स लेकर, मेरे हाथ में बिल्स रिसीवेबल्स है, उसके हाथ में बिल्स पेएबल्स हैं। अब मुझे ना 1 महीना हो गया, ठीक है। अब मुझे कैश की नीड पड़ी, मेरे बिजनेस के लिए कैश की नीड पड़ी। अब मैं वो कस्टमर को तो नहीं कह सकती ठीक है मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पैसे दे दो, पर वो कहेगा आपने ही तो कहा था 4 महीने बाद देना। तो मैंने कहा कोई नहीं, चलो 4 महीने बाद दे देना। अब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, कैश की तो बहुत नीड है, तो अब मैं क्या करूं? तो मैंने सोचा क्यों ना बैंक से हेल्प ली जाए। तो मैं बैंक के पास गई, बैंक को मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे से बिल खरीद लो, आप मेरे से ये बिल खरीद लो। कितने का बिल है ये? 30,000 रुपीज का बिल है। 30,000 का आप मुझसे बिल खरीद लो और मुझे एडवांस पेमेंट दे दीजिए। अब ऐसे एडवांस क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी तक 3 मंथ्स पड़े हैं ना बिल को पूरा होने में, 1 मंथ अभी तक खत्म हुआ था ना, और बिल था 4 मंथ्स का। बिल की मेच्योरिटी कब थी? 4 मंथ्स की। तो मैच्योरिटी डेट तक मैं रुक नहीं सकती, मेरे बिजनेस के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो ये जो बैंक है ना वो कहेगी ठीक है मैं आपसे बिल खरीद लेती हूँ। खरीद तो लेगी बैंक, लेकिन बैंक को भी तो 3 महीने रुकना पड़ेगा ना आपके कस्टमर से मांगने के लिए, मेरे कस्टमर से मांगने के लिए। जो मेरा कस्टमर है वो 30,000 कब पे करेगा? अब और 3 महीने बाद, जो अब और 3 महीने पड़े हैं तो वो बाद में पे करेगा। तो 3 महीने तक तो बैंक ने आपको अपना पैसा बीच में ब्लॉक करके आपको दे दिया ना, एडवांस दे दिया। तो ये तो फाइनेंशियल सर्विस हो गई। हाँ जी, ये बिल्कुल फाइनेंशियल सर्विस, ये तो फाइनेंस वाली सर्विस हो गई, ठीक है, ये फाइनेंस वाली सर्विस हो गई। क्या इसमें फंड डायरेक्टली इन्वॉल्व है? हाँ जी, बिल्कुल इन्वॉल्व है। आपको कैश ही तो निकाल कर दे रही है, डायरेक्ट कैश। बिल खरीदा, कैश दे दिया, ठीक है। कैश कितना देती है बैंक आपको पता है? 30,000 का 30,000 नहीं देती है। क्यों? क्योंकि चार्जेस कट होता है। यस, अब वो चार्जेस क्यों कट होते हैं? क्योंकि वो आपको मुफ्त में थोड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। नहीं, बैंक का भी तो 3 महीने तक के लिए पैसा ब्लॉक हो रहा है ना, और आपका फायदा हो रहा है, आपको 3 महीने पहले ही पैसा मिल गया, जबकि कस्टमर आपका था, बैंक का थोड़ी था। मैं बैंक की क्लाइंट हूँ और वो मेरा कस्टमर है, पर मेरे कस्टमर से अब डील कौन करेगा 3 महीने बाद? बैंक। अब बैंक 3 महीने पूरा होगा,
बैंक ने मुझे कितने पैसे दिए? 30,000 के बजाय 27,000 मुझे दिए, तो मेरा भी फायदा है ना। 27,000 मुझे ऑन द स्पॉट मिल गए ना, जब मुझे चाहिए थे बिजनेस के लिए। मेरा बिजनेस रुकना नहीं चाहिए, मेरे बिजनेस के एक्सपेंसेस और इनकम्स रुकने नहीं चाहिए। तो मेरे लिए तो 27,000 बहुत अच्छे हैं, मुझे तो चाहिए थे अभी, कैसे भी करके अर्जेंट थे। ठीक है, अब बैंक क्या करेगी? 27,000 आपको देगी 30,000 के बजाय। अब 3 महीने खत्म हो गए, अब बैंक क्या करेगी? आपके कस्टमर के पास जाएगी, अप्रोच करेगी कि आपने पूरा पैसा मुझे देना है, ये बिल मेरे हाथ में। ठीक है, नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट होता है ये बिल्स रिसीवेबल्स। बियरर डॉक्यूमेंट होता है, जिसे कहते हैं बियरर, मतलब जिसके हाथ में है वो वसूल करेगा। तो बैंक के हाथ में आ गया अभी ये बिल, तो बैंक कहेगी अब आपका पूरा पैसा 30,000 मुझे लेना है। तो कस्टमर क्या करेगा? 30,000 का 30,000 बैंक को दे देगा, वो अपने सप्लायर को नहीं देगा, मतलब मुझे नहीं देगा। किसको देगा? बैंक को। अब बैंक को हाथ में पैसे कितने आए? 30। बैंक ने पैसे पे कितने किए? 27। तो बीच में बैंक ने कितना कमीशन खाया? 3,000। 3,000. So 3,000 कमीशन तो चार्ज करेगा बैंक। क्यों? क्योंकि मुझे उसने फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड की। कौन सी? फंड बेस्ड। तुरंत मुझे जब immediately when I wanted my money for my business, bank gave me. So that is a fund based financial service, obviously. And for this type of financial service, for every type of financial services, those companies, those financial institutions, those banks, insurance companies, when they give you financial services, they charge you something in return for that. Like when a leasing company gives you financial services, when a leasing company gives you equipment on rent, they charge you rent, no? So their income is rent. When in the case of hire purchase, when a party lends you goods on rent, sells you goods on rent, they are giving you the benefit for purchasing the goods on rent. They are ready to take installments, and you are taking away all the goods at one point of time on one go, but paying money in the installments. So this is a benefit for you that a dealer is giving to you. It's a benefit for you, and because of your benefit, of course they are charging you, they will be charging you, no? It is your benefit. So ultimately they are also at a win-win. There is a win-win situation, means both parties should win something. In bill discounting case also there is a win-win situation. For a businessman, for a client, he also wins, because when he needs money, bank gives him, he purchases its bill, right? And when it is also a win situation for banks also, because they earn commission. So it's a win-win type of situation, both the parties win. Okay, now come to venture capital. What is venture capital? जिनका न्यू बिजनेस स्टार्ट होता है वो लोग। Very good, very good. New business that is associated with high risk. Now suppose, let me give you an example, okay? Let me give you an example. Suppose I have opened up a new business, a company that I'm opening up, a new company, okay? Suppose I've opened up a company in textile industry. Now there are many industries already set up in the market, okay, have a very good goodwill in the market, reputation in the market. Now nobody will invest in my company because I'm a new company. पता नहीं कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, इस कंपनी के शेयर्स तो खरीदे, पता नहीं कल को कंपनी डूब गई तो मेरे शेयर्स का पैसा डूब जाएगा, है ना? तो पता नहीं, लोग तो देखो, लोग बहुत कम होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए नई कंपनी में। आज मैं आपको बोलूं आपके पास 5 लाख रुपए, जाके किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगाओ जो अभी अभी नहीं खुली है, क्या आप पैसा लगाएंगे? नहीं, डरेंगे ना कि हाई रिस्क है, बाप बहुत ज्यादा हाई रिस्क है। अगर मैंने इन्वेस्ट कर लिया तो मतलब चल पड़ी तो बहुत चल पड़ेगी, नहीं चल पड़ी तो पूरा पैसा डूब सकता है। तो इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा? हाँ लेते हैं ना, कौन लेते हैं पता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, ऐसे बैंक्स लेते हैं। बैंक्स आएंगे, आपको हेल्प करेंगे, मतलब मेरी न्यू कंपनी है, अब मेरे पास जब कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा तो पैसा किधर से आएगा?
कैपिटल किधर से आएगा? और जब कंपनी के पास कैपिटल ही नहीं होगा तो फंड्स ही नहीं होंगे, तो मैं गुड्स खरीद बनाऊंगी कैसे, मैन्युफैक्चर कैसे करूंगी, बेचूंगी कैसे और प्रॉफिट्स कैसे अर्न करूंगी, प्रोडक्शन कैसे करूंगी? आ रही है बात समझ में? हर चीज के लिए पैसा चाहिए ना, मार्केटिंग करनी है पैसा चाहिए, पैकिंग करनी है पैसा चाहिए, लेबलिंग करना है पैसा चाहिए, गुड्स बनाने मैन्युफैक्चर करनी है, खरीदने के लिए पहले पैसा चाहिए। तो हर एक चीज, हर एक स्टेप पे आपको एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं पहले, उसके बाद धीरे धीरे इनकम स्टार्ट होती है बिजनेस की, है ना? तो ऐसी कंपनीज जो न्यू कंपनीज हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज कैसे होते हैं, न्यू बॉर्न कंपनीज है ये, है ना? जो न्यू बॉर्न कंपनीज है, या फिर अगर एग्जिस्टिंग है उनको ग्रोथ चाहिए, उनको एक्सपैंड करना है, समझो उनका एक ही फर्म था, एक ही जगह पे था, अब उनको ब्रांचेस ओपन करने, एक्सपैंड करना है, तो ये भी तो वही हो गया, वही बात हो गई ना कि ब्रांच न्यू है। तो समथिंग विच इज ओपन न्यू और समथिंग विच हैज टू बी एक्सपैंडेड, ऐसी कंपनीज में ना कोई इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं होता है। तो फंड्स आएंगे किधर से? कंपनी बढ़ेगी कैसे, चलेगी कैसे, ठीक है, उसके पिलर्स कैसे बनेंगे, खड़ी कैसे होगी कंपनी? तो जब ऐसी कंपनीज होती है ना, इनको फंड्स की नीड होती है ना, ये अप्रोच करते फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स को, और बैंक्स आर रेडी टू इन्वेस्ट इन वेंचर कैपिटल। अब ये वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है? प्रोवाइडिंग फंड्स टू न्यू एंड प्रॉमिसिंग कंपनी, जो प्रॉमिस करते हैं कि हम कुछ नया टेक्नोलॉजी लाएंगे, कुछ नया इनोवेटिव प्रोडक्ट ला रहे हैं, जो कि जिसके चांसेस ज्यादा हैं चलने के। देखो अगर आपने कोई पुराना प्रोडक्ट लाया तो कंपनी क्यों बैंक इन्वेस्ट करेगी आपके इसमें? आपके इसमें तभी तो इन्वेस्ट करेगी जब आप कुछ नया मार्केट में लेके आ रहे हैं, जो चलने के चांसेस हैं, जिसके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अच्छा समझ गए ना? ये वेंचर कैपिटल क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है ये, ठीक है। अब ये वेंचर कैपिटल ना बहुत रिस्क वाला होता है, ठीक है, जो बैंक्स ले लेते हैं, और ऐसे ही नहीं किसी भी कंपनी में वेंचर कैपिटल लगा देते हैं, नहीं, पहले वो देखेंगे कि क्या कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है, कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रही है जो लोगों की नेसेसिटीज में आता है, या फिर लोगों के डिजायर्स को पूरा करेगा, न्यू टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, ओके, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो वाकई में मार्केट में टक्कर लाने वाली चीज होगी। आ रही है बात समझ में? ऐसी कंपनीज में वो वेंचर कैपिटल लगाने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कैपिटल लगाएंगे तो बैंक भी तो अपना अमाउंट का सोचेगी ना कि डूबना नहीं चाहिए। ऐसे ही नहीं बैंक भी उठाकर किसी भी कंपनी को वेंचर कैपिटल दे देगी, नहीं। आ रही है बात समझ में? यस मैम। यस हाँ, ये ओवरसीज भी हो सकता है। अगर आपको नेशनल लेवल पे आपका बिजनेस है और इंटरनेशनल लेवल पे ओपन करना है ओवरसीज, तो भी आपको वेंचर कैपिटल बहुत अच्छा खासा बैंक्स आपको देती हैं, ठीक है, कैपिटल देती हैं। तो उस कैपिटल को कहते हैं वेंचर। वेंचर मीन्स अभी अभी एंटर किया है, एंटर, अभी अभी मैंने किसी एरिया में, किसी मार्केट में, किसी फील्ड में, किसी प्रोडक्ट में एंटर किया है और मैं उसमें बेचना चाहती हूँ, मैं उसमें बिजनेस करना चाहती हूँ, खरीदना बेचना मैन्युफैक्चरिंग करना, वो मैं चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास फंड्स नहीं है, तो मुझे वेंचर कैपिटल की फैसिलिटी, फाइनेंशियल सर्विस मिल सकती है। देखो इसमें डायरेक्ट फंड्स इन्वॉल्व है ना, आपको फंड मिलता है, इसमें कैपिटल मिलता है, पैसा मिलता है डायरेक्टली। और याद रखना हमेशा, वेंचर कैपिटल है ना, इक्विटी में डील करता है, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स नहीं, बिल्कुल नहीं। जो वेंचर कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहा है ना, मेरी कंपनी में वेंचर कैपिटल मुझे कैपिटल देने के लिए रेडी है, तो कुछ तो अगेंस्ट में मैं भी दूंगी ना उसको। क्या दूंगी? कैपिटल के अगेंस्ट में क्या देते हैं? शेयर कैपिटल, मैं उसको शेयर्स दूंगी। जब मुझे कोई कैपिटल देता है तो मैं उसको शेयर्स देती हूँ ना, तो ही बिकम्स माय शेयर होल्डर ना। वो जो बैंक है जो मुझे वेंचर कैपिटल देगी, उन्हें मैंने क्या देना है? इक्विटी शेयर्स। अब ये वो इक्विटी शेयर्स होते हैं, देखो फर्क है, वेंचर कैपिटल और नॉर्मल इक्विटी शेयर्स में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? जो नॉर्मल इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, अब मैंने नॉर्मल इक्विटी शेयर्स खरीदे किसी कंपनी के, तो जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती है ना, तब तक मैंने अभी कंपनी को, मतलब मेरे ही शेयर्स हैं, मतलब वो मेरी कंपनी हो गई, शेयर होल्डर बन गई मैं उसकी, रियल शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। पढ़ा है ना हमने इक्विटी के बारे में। लेकिन यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए बैंक को रुकना नहीं पड़ेगा,
जैसे ही कंपनी ग्रो करेगी, देखो मोटो क्या था, कंपनी ग्रो करे, तो जैसे ही कंपनी ग्रो करेगी बैंक अपना पूरा पैसा निकाल सकती है, फेच कर सकती है, इक्विटी बेच देगी, आपको वापस दे देगी और अपना पैसा वापस ले लेगी, टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ गुड अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिटर्न्स। नहीं तो बैंक कमाएगी क्या? फिर क्यों दिए आपको? फिर क्यों आपको वो कैपिटल दे रही है? कुछ तो अर्न करना है ना बैंक ने भी। अब जैसे ही आपकी कंपनी ग्रो हो गई, फ्लरिश हो रही है, आपके ब्रांचेस ओपन हो रहे हैं, फ्लरिश हो रही है, तो अब आप क्या, अब बैंक को ऑप्शन है, देखो ऑप्शन की बात है, कंपलसरी नहीं होता है, ऑप्शन है, जब बैंक चाहे ना ये इक्विटी को बेच सकती है। आ रही है बात समझ में? जब बैंक चाहे उसे बेच सकती है, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो अब वो रियल ओनर्स नहीं होते, वेंचर कैपिटल जो प्रोवाइड करते हैं ना, वो रियल ओनर्स नहीं होते। समझ में आया? वो हमेशा के लिए कंपनी के साथ नहीं रहते, जैसे ही कंपनी ग्रो करेगी ना छोड़ देंगे। यूएस में कैसे होता है, बाहर की कंट्रीज में आपने सुना होगा, बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है, बच्चा 12, 13, 18 साल का हो गया, अब उसको घर से निकाल दो, खुद ही कमाएगा, खुद ही देखेगा। बहुत सारी कंट्रीज में ये होता है, पता है? तो वही बात हो गई, अब छोटा छोटा कंपनी था, बढ़ गया, अच्छा हो गया, बढ़ गया, अब निकाल दो पैसा, निकाल दो कंपनी से, अब खुद ही देख लेगा वो, अपने पैरों पे खड़ी हो गई ना कंपनी, अब खुद ही देख लेगी, मुझे मेरे फंड्स वापस करो आप। आई बात समझ में? क्या होता है ये? देखो Yes, वेंचर यस मैम। कैपिटल यस मैम। एग्जाम्पल देख के समझा रही हूँ, जैसे आपको ना डिफिकल्ट फाइनेंशियल सर्विसेज भी इजी लगेंगी। ये हिस्ट्री विस्ट्री आपने नहीं पढ़नी है, बिल्कुल नहीं पढ़नी है। अब आ जाओ हाउसिंग फाइनेंस पे। देखो नाम सुन के ही समझ में आ रहा है, हाउसिंग फाइनेंस, ये घर के लिए, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, आपको घर खरीदने के लिए लोन देते हैं, घर को कंस्ट्रक्शन करना है, रेनोवेशन करवाना है, ठीक है? तो ऐसे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आगे आते हैं जो हाउसिंग फाइनेंस देते हैं, ठीक है? रियल एस्टेट में आपको हेल्प करते हैं, उसके लिए फाइनेंस मिलता है आपको। इसमें ना सबसे बड़ा जो जिसे कह सकते हैं हम सुपरवाइजरी अथॉरिटी, उसे कहते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी। हमने ऊपर भी पढ़ा था डेवलपमेंट बैंक्स में, याद है? यस। डेवलपमेंट बैंक्स में हमने एक पढ़ा था नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी। ये हाउसिंग बैंक की, ये हाउसिंग फाइनेंस ही तो देती है, ठीक है? ये फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस होता है, मतलब आपको डायरेक्ट फंड्स मिलते हैं, इसमें डायरेक्ट फाइनेंस होता है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ फैक्टरिंग। अब ये फैक्टरिंग क्या होता है? देखो अब जब हम टीवाई में आएंगे ना, एफएसएम एक चैप्टर है जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ टीवाई के स्टूडेंट्स को, एफएसएम फाइनेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट, जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। अभी तो हमने फाइनेंशियल सिस्टम को समझा जिसके 4 पिलर्स हैं, उसमें से एक है फाइनेंशियल सर्विसेज। अब जो फाइनेंशियल सर्विस है ना, वो तो हम एक पॉइंट पढ़ रहे हैं, अभी तो इसके ऊपर पूरा सब्जेक्ट है, चैप्टर नहीं सब्जेक्ट है। अब जब टीवाई में आएंगे ना तब, अभी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ टीवाई की, उसका नाम है फाइनेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट, उसमें पूरा एक चैप्टर है फैक्टरिंग। आपको समझ आ रहा है? अभी तो सिर्फ उसने मीनिंग दी हुई है ना, फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है, तब तो आपने पूरा उसको डिटेल में पढ़ना है, फैक्टरिंग होता क्या है चैप्टर में पढ़ना है। तो हम धीरे धीरे बच्चों की लेवल बढ़ा रहे हैं, देखो धीरे धीरे आप फर्स्ट एंटर किए हो फर्स्ट ईयर में, तो अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको नॉलेज मिल रहा है, बिल्कुल बेसिक नॉलेज। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको डिटेल में हर एक चीज समझने को मिलेगी, ठीक है? तो अब फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है और ये फंड बेस्ड कैसे होता है फैक्टरिंग? अब देखो बिल्स डिस्काउंटेड में क्या होता है, बहुत इजी है, बहुत इजी। आप खाली एग्जाम्पल को समझेंगे ना तो इजी लगेगा। ये करके हम लोग वाइंड अप करेंगे, ओके? ओके, so factoring is similar to bills discounting. Similar, I'm not saying it is same as uh, uh, bills discounting. देखो बिल्स डिस्काउंटिंग में क्या होता है, एक बिल, आप एक बिल भी लेके जा सकते हो बैंक के पास कि आप मेरे से बिल खरीद लो, एक कस्टमर का बिल है, आप एक बिल मुझसे खरीद लो और मुझे इसका एडवांस दे दो। बिल डिस्काउंटिंग में क्या होता है, एक भी हो सकता है। फैक्टरिंग में क्या होता है, सारे के सारे जितने भी आपके पूरे साल भर में रिसीवेबल्स है ना, जो बिल्स रिसीवेबल्स हैं, वो सारी की सारी सर्विसेज
आपका फैक्टर देख लेता है. फैक्टर मीन्स हु प्रोवाइड्स द सर्विसेज ऑफ फैक्टरिंग. द पर्सन, the expert who provides you, the financial institution who provides you the services of factoring is known as factor. Okay, the person who provides you the services of factoring is known as factor. तो यहाँ पे फैक्टर क्या करता है, आपके सारे काम देख लेगा. सिर्फ सिर्फ बिल्स को कलेक्ट करना ही नहीं, सिर्फ बिल्स को खरीदना ही नहीं होता है उसमें, सारे बिल्स को फाइनेंस करना, मतलब कलेक्शन करना, डेटर से कितने टाइम में कलेक्ट करना है, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, मतलब कौन से डेटर से कब कलेक्ट करना है, कितना एडवांस कलेक्ट किया हुआ है, कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है डेटर्स का जिन्होंने नहीं पे किया और उनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है. आ रहा है समझ में? अच्छा, कितने पीरियड क्रेडिट पीरियड देना चाहिए कौन से डेटर्स को, समझ आ रहा है? आपका ना बहुत बड़ा बिजनेस है, आपको ये सब चीजों में ना देखने का टाइम नहीं है कि कितने मेरे डेटर्स हैं, एक एक से कब कब पैसा लेना है, कलेक्शन कब करना है, और कितना पीरियड देना चाहिए मुझे एक एक डेटर को. मुझे इन सब का टाइम नहीं है देखने का. तो मैंने क्या किया, पूरा का पूरा ये काम मैंने एक फैक्टर को दे दिया. फैक्टर कोई भी बन सकता है, बैंक भी बन सकती है आपके लिए फैक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आपके लिए फैक्टर बन सकता है, या जो एक्सपर्ट हो इस फील्ड में, जिसको नॉलेज हो, जिसका एक्सपीरियंस हो. ठीक है, वो क्या करता है, जैसे ही आपने कुछ गुड्स को बेचा, अब आपने ना कस्टमर से डील कर लिया. अब डील भी कौन करता है, फैक्टर करते हैं. कि अच्छा आपको ये गुड्स चाहिए, वो आपको बता देगा कि ना आपके कस्टमर को इतने गुड्स चाहिए, तो इतना इतना क्रेडिट पीरियड मैंने उसके साथ बना दिया 3 मंथ्स का. तो आप क्या करोगे, गुड्स पहुंचाओगे कस्टमर के पास. अब कलेक्शन का काम किसका होगा, फैक्टर का. आप आपको वो अमाउंट मिल जाएगा, आपके पास अमाउंट रुकेगा नहीं. आपको तो पैसा चाहिए ना आपकी कंपनी को, तो फैक्टर क्या करेगा, जैसे ही आपने गुड्स बेचे पैसा आपको मिल जाएगा. कौन देगा आपको पूरा का पूरा अमाउंट, फैक्टर देगा. फाइनेंस कौन करेगा, फैक्टर. लेकिन 3 महीने बाद जो ड्यू डेट है, 3 महीना क्रेडिट पीरियड, 3 महीने बाद वो कस्टमर से खुद ही पैसा वसूल करेगा. आपको तो पहले ही पैसा मिल गया ना. बिल्स डिस्काउंटिंग में भी तो ऐसे ही होता है, आपने बिल दे दिया, पैसा पहले ही मिल गया, ड्यू डेट से पहले. आपकी कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो आपको तो पैसा पहले ही मिल गया ना. सो दैट इज द सेम केस इन द फैक्टरिंग. whereas factoring is a, I mean bills discounting is a narrow term, whereas factoring is a broad term. आया समझ में, दोनों में डिफरेंशिएशन समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम. यस मैम. That's it. Yes, अभी ma'am. के लिए आपको सिर्फ मीनिंग पढ़ना है फैक्टर का. Just as we have understood the meaning of each and every term which is given in fund-based financial service, so as with factoring. Okay, just meanings. Okay. So I think done for the day. We can continue it in the next lecture.